It's like Ulta Chor Kotwal ko Dante. You've killed our people. You have to apologize. Unconditional apology. Why was Mr. Jaishankar so apologetic? There is a San Rome manual which governs. There is the Geneva Convention of 1949 which governs. Well, Mr. Jaishankar's post says that the words he used was not justified. It's a very mild way of rebuking somebody who's killed your own people. Whereas Rubio's statement is very harsh on us. It's like Ulta Chor Kotwal ko Dante. You've killed our people. You have to apologize. Unconditional apology. There are international laws governing. You can't attack a commercial vessel of a third country in a conflict. There is a San Rome manual which governs it. There is the Geneva Convention of 1949 which governs it. And there are additional protocols that govern. Why was Mr. Jaishankar so apologetic? We've lost lives. We should have demanded apology, unconditional apology. But look at the international humiliation. And I don't understand why we did not open our mouth when INS Dena, that episode took place. If we had publicly rebuked America during that time, I don't think this would have been done by America. But the way PM Modi will meet Trump also, he's going to on a foreign visit. So do you expect that a PM will raise? Why do you expect this? Do you think the PM will raise it? The PM is absolutely happy posting his photographs with international leaders. That's it. That's the purpose of all his visits. But if Donald Trump is your friend, we are very happy about it. But why should your friend be the enemy of India? He's your friend because you are the Prime Minister of India, not because you are Narendra Modi. Who bothers if you're not the Prime Minister of India? So as Prime Minister of India, it's your job to jolly well protect and defend the sovereignty of India, to protect the lives of Indians, and to and to publicly chastise America. I remember Devyani Khobragade episode when UPA 2 was in power. We took steps which were public. We were not scared of America. Why is Mr. Narendra Modi afraid of Donald Trump? Why is he afraid of America? What will the Congress party demand over this? Because we have lost 3. Well, we demand an apology. We demand the government to ensure that India gets an apology. After all, there needs to be some justice to the families of those who lost their loved ones. Sir, what's your take on the TMC controversy arises? So we have seen in Bengal continuously that rebel MPs are going to meet Lok Sabha Speaker. I keep telling you, all of us keep telling you that Operation Kichad, wherever BJP goes, they spread unethical conduct in politics. And that's what is happening in Bengal too. CID also summoned Abhishek Banerjee. Yeah, but have you heard CID summoning any of their allies, any of BJP leaders? Have you heard that? Anybody who goes through the washing machine of Narendra Modi will not be summoned. सर शिप पर जो अटैक हुआ उसके बाद जयशंकर जी ने बातचीत की यूएस सेक्रेटरी से, यूएस सेक्रेटरी की ओर से भी एक स्टेटमेंट। अरे क्या बात की भाई, आपने बोला ये जस्टिफाइड नहीं है। जब आप किसी पंसारी की दुकान पे जाते हैं, बोले इतनी ज्यादा कीमत, जस्टिफाइड नहीं है। ये जस्टिफाइड नहीं है। 3 जिंदगियां गई हैं हिंदुस्तानियों की और आप कह रहे हैं जस्टिफाइड नहीं है। आपको बिना शर्त की माफी अमेरिका से मांगनी चाहिए थी और हमको वो माफी लेनी चाहिए थी। उल्टा डांट खाकर आ गए। उल्टा रूबियो कह रहे हैं कि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अरे आप कौन है भाई? और अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, जिनीवा कन्वेंशन है 1949 की, एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, सैन रेमो मैनुअल है। एक कमर्शियल वेसल को इस तरह से अटैक करना और हमारे हिंदुस्तानियों की बेशकीमती जान चली जाए और हम मुंह नीचा करके आ जाएं, ये आईएनएस देना के वक्त अगर हमने आवाज उठाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तब भी हम चुप रहे, आज भी हम चुप हैं। हमारे मेहमान पर हमला हुआ तब हम चुप रहे, इंडियन ओशन में आकर हमला हुआ तब हम चुप रहे। तो हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे? क्यों डरते हो साहब? देवयानी खोब्रागाड़े जी का एपिसोड हुआ था यूपीए 2 के वक्त, हमने कुछ मजबूत कदम उठाए थे, डरे नहीं थे अमेरिका से। आज प्रधानमंत्री डरते हैं अमेरिका से। बार बार ये उदाहरण हमें मिलता है। G7 पे जा रहे हैं,
वहां मुलाकात करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा हिंदुस्तान के 3 नागरिकों की हत्या के। ये हत्या है, उससे कम कुछ नहीं है, और अमेरिका के हाथों में हत्या हुई है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हत्या भी वो करेंगे, हमें डांटेंगे भी वो, और हम डांट खा के आ भी जाएंगे। क्या दबाव है अमेरिका का जयशंकर पर या नरेंद्र मोदी पर? यही तो हम बार बार पूछ रहे हैं। बंगाल के अंदर जिस तरह सर टीएमसी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे, उधर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे एक सांसद हमारे टच में है। ये ऑपरेशन कीचड़ का एक और नया अध्याय है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जाती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाता है, वहां ये कीचड़ शुरू हो जाता है, और बिना कीचड़ के इनका कमल खिल भी नहीं सकता। जहां इनका कमल खिलेगा वहां कीचड़ आएगा, जहां कीचड़ आएगा वहां इनका कमल खिलेगा। और अगर इनमें से कोई भी ईडी सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी की तरफ चला जाता है, उनकी वॉशिंग मशीन की तरफ चला जाता है, सब ठीक है, सारी फाइलें बंद हो जाती हैं। ये महाराष्ट्र में हुआ, ये अब बंगाल में होता हुआ दिख रहा है, और कई राज्यों में आपने ये होते हुए देखा। राहुल गांधी एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, 4 अलग-अलग राज्यों में जो है मुलाकात करेंगे बच्चों की। इसका क्या ऑब्जेक्टिव? आज भारत का नौजवान बहुत रोष में है, दुखी है, उसको लगता है उसके साथ धोखा हुआ है, और हुआ भी है। उसका पूरा भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी एक ऐसे नेता साबित हुए हैं इस देश के, जो उन नौजवानों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसी सिलसिले में हम ये एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। 17 तारीख को कोटा से शुरू कर रहे हैं, जहां राहुल जी संवाद करेंगे नौजवानों से, उनका दुख साझा करेंगे, उनकी चिंताएं साझा करेंगे, और उनकी आवाज़ पूरे देश में फैलाएंगे। मीनाक्षी नटराजन मामले में अब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने देख लिया प्रदर्शन भी आप लोगों ने कर लिया, हालांकि अब वो सीट तो आपके पास नहीं रही, लेकिन भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, और आगे क्या इस मामले पर अभी आप कोर्ट पर उम्मीद रखेंगे? भविष्य में ऐसी चीज़ें तभी न होंगी जब भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से बाहर किया जाएगा। जब तक ये केंद्र सरकार में रहेंगे, ये इसी तरह से संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाएंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। आपको रोज एक उदाहरण मिलता है कैसे ये संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं।